डन बच्चा लो, ओके चलो. Yes. Let us see typical root structure. Please everyone pay attention. Typical root structure. एक typical root का structure कैसे होता है ये हमें study करना बहुत जरूरी है. Okay. Yes. When you take any root, okay, and when you take the vertical section of this root, you will see that it shows four prominent regions. Four prominent regions. The regions are root cap region, region of cell division, region of elongation, and region of maturation. Okay. The four regions are region of root cap, region of cell division, region of elongation, and region of maturation. Chalo. Let me teach you each and every part in a detail. First is root cap region. अब ये जो root cap region है, basically you can see the tip of the root is covered with the hard cells, right? Now these hard cells, a proper hard thimble-like cells which are present, multi-cells, and these cells, they protect the tender tip of the root. Guys. Yes, miss. Yeah. Can everyone see me? Yes. Yes, miss. Yes, miss. Say this is a root. This is a root. Now, can everyone see the tip of the root? The tip of the Yes, root? miss. It is so delicate. And it is responsible for the growth of the root. मतलब अगर ये टिप पे ना डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यू कैन सी दैट, मैंने वहां पे लिखा हुआ है रीजन ऑफ डिवीजन, यानी कि ये टिप पे ना डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि टिप पे बहुत ही सेंसिटिव सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है. अब अगर मैं इस पेन को स्ट्रेट ऐसे नीचे गिरा दूं तो ये टिप खराब हो जाएगा ना, and the tip will get damaged. If the tip gets damaged, do you think that the root will grow further deep inside the soil? And do you think that the root will be so strong and alive to hold the plant also? Root gaya to plant bhi gaya, samajh jana. If the root is gone, entire plant is gone. So to protect this tip, what will I do? इस टिप को, इस पेन के टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ? आप एक, मैं यहाँ पे एक कैप लगाती हूँ, राइट? आई यूज अ कैप ताकि ये टिप जो है मेरा प्रोटेक्टेड रहे. करेक्ट? आप किसी भी पेन को नीचे ड्रॉप करोगे टिप से तो उसकी टिप खराब हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको कैप लगाओगे और ड्रॉप करोगे तो कुछ नहीं होगा. बस यही फंडामेंटल है, यही फंडामेंटल यहाँ पे भी है. The tip of the root, that is the apical. Now we will not call it as tip, we will call apex. Okay, so root cap region. Numbering कर देते. Root cap. Now these root caps are made up of hard cells. Not even hard, I would say they are made up of multi-cells. Okay, multicellular layer. बहुत सारे सेल्स का लेयर है ये, देखो बहुत सारे सेल्स के लेयर्स है. एंड दीज सेल्स आर पैरेन्काइमेटस सेल्स, यानी कि दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स, multicellular parenchyma cells, and it is covering root apex. root apex यानी कि simple language में root का tip, it covers the root apex, covering the root apex, and it makes its way through the soil. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? That the root cap will make its way inside the soil. मतलब deep अंदर जाना है soil के अंदर. So that way is been made by the root cap. यानी कि root cap जो है वो soil के अंदर रास्ता बनाएगा, जगह बनाएगा तो root अंदर grow हो पाएगा. Are you getting it? Root cap is digging inside the soil. I would say like that. Root cap is digging inside the soil ताकि space बने root को grow होने के लिए. Are you understanding this? And also it is protecting the apical
रीजन, दैट इज एपेक्स रीजन। तो सेकेंड रीजन जो है वो है रूट एपेक्स, दैट इज रीजन ऑफ सेल डिविजन। अब यहां पर जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स अबाउ द रूट कैप, meristematic cells. Second region has meristematic cells. So these cells are present few millimeter above, okay, few mm above root cap, यानी कि रूट कैप से थोड़ा ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको मास मिलेगा सेल्स का, विच आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स. नाउ दीज सेल्स आर वेरी सेंसिटिव. The cells are thin walled with proper large nucleus, of course, and very little cytoplasm. Okay, prominent large nucleus and cytoplasm, and these are dividing cells. These are dividing cells. यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होके नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं. ग्रोथ ये डायरेक्शन में हो रहा है गाइस, ग्रोथ ये डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ग्रोथ नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है. रिमेंबर दैट. ऑलराइट, तो जैसे जैसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, ये देखो मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, नए नए सेल्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे. सी दिस, न्यू cells are added in the layer. दिख रहा है आपको? Now these cells will enter into the third region, that is region of elongation. जहां पर ये cells elongate होंगे, they will grow in size and shape. Okay, जितना stretch होना है उतना वो stretch होंगे, जिससे कि root का length decide होता है. So basically root of region of elongation में जो newly formed cells है, okay, newly formed cells, they will undergo rapid elongation, enlargement. Okay, so they enlarge in size and they increase the length of the root. Yes, they increase the length of the root. यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने रूट एपेक्स पे अपाइकल मेरिस्टेम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपाइकल मेरिस्टेम, व्हेन दीज मेरिस्टेम सेल्स आर डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली रैपिडली, नए नए सेल्स ऊपर की तरफ पुश किए जाते हैं. ओके, ऊपर की तरफ पुश किए जाते हैं. नाउ दीज न्यूली फॉर्म्ड सेल्स दे विल एनलार्ज इन साइज एंड दे विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट. यानी कि इलोंगेशन रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड द लेंथ ऑफ द रूट इनसाइड द सॉइल. गेटिंग इट? अगर इलोंगेशन नहीं होगा तो सेल्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा और रूट्स का लेंथ भी जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट द लेंथ विल बी डिक्रीज कंप्लीटली. एनी डाउट इन दिस? ये तीनों रीजन क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ मोहम्मद? मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक बार एक्सप्लेन कर दो ना. श्योर, पक्का. एवरीवन अंडरस्टूड रूट कैप? पहले मुझे बताओ, आप सबको रूट कैप समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, it's a capping. Yes, ma'am. Yes, it's a capping. Correct. It's a capping. Now, what is meristematic cells? Meristematic cells, if you remember guys, हम लोगों ने 9th में स्टडी किया था meristematic cells के बारे में. These are special cells. मोहम्मद, चलो 9th याद नहीं है कोई? मैम 1 मिनट. मैम 1 मिनट. These, हाँ, परी, ध्वनि, श्रेया, सानिया, सानिया. मैम ऑन है. ऑन नहीं है. मैम मैंने 2 डिवाइस से किया है, फोन पे ऑन है, लैपटॉप पे नहीं ऑन. ओके फाइन. okay guys, pay attention. Meristematic cells, मैं आपको वापस से समझाती हूँ. मोहम्मद, मैं दिखाई दे रही हूँ? यस मिस. ओके, एवरीवन कैन सी मी. मोहम्मद, मैंने ये बताया था कि ये जो पेन है, मैं पेन ही ले लेती हूँ, रुक जा. हाँ मोहम्मद, ये देखो ये पेन है.
तो ये पेन का जो सिल्वर रीजन है ना, सिल्वर रीजन मतलब ये जो पूरा टिप है, दिस हैज अ स्पेशल डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेम सेल्स कहते हैं उसको. हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स, प्लांट में मेरिस्टेम सेल्स, जो लगातार प्लांट जब तक मरता नहीं है तब तक ये डिवाइड करते ही जाते हैं. ठीक है, एंड ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करते जाते हैं. ठीक है, अब आपको क्या लगता है मोहम्मद, जब एक बार प्लांट ग्रो होता है और वो जब रूट्स प्रोड्यूस करता है, वो वही रूट में कंटिन्यू करता है सर्वाइव करना? नहीं नहीं. नहीं, मेन रूट थोड़ा 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 ग्रो होते ही रहता है. मेन रूट उतना फास्ट नहीं ग्रो होगा, ब्रांचेस फास्ट ग्रो होंगे, लेकिन मेन रूट थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली वो ग्रोथ करता है इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉर द फिक्सेशन ऑफ द प्लांट. ठीक है, नाउ ये जो टिप है इसके, अब ग्रोथ करना है मोहम्मद, तो ये ग्रोथ कौन करवाएगा? मेरिस्टेम सेल्स, बिकॉज दीज आर डिवाइडिंग सेल्स. तो ये जो टिप है ना, टिप पे जो सेल्स प्रेजेंट है, these cells will continuously divide, and when it divides it add the new cells in the upper layer. नीचे की तरफ ग्रोथ हो रहा है ना मोहम्मद, तो जो नए सेल्स है वो ऊपर की तरफ पुश होगा, राइट? एंड दीज डिवाइडिंग सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, तो थिक वॉल तो नहीं हो पाएगा सेल वॉल का, थिक सेल वॉल नहीं होगा. एंड द न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट एंड साइटोप्लाज्म इज lightly dense, not too much dense but lightly dense. And now since these are dividing cells, ये continuously divide करते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए there is a root cap, जो इन सेंसिटिव सेल्स को सॉइल पार्टिकल से बचाएगा. बिकॉज याद रखना, ये जो टिप है, ये जो टिप है ना, ये टिप अंदर की तरफ ग्रो हो रहा है मोहम्मद, नीचे की तरफ जा रहा है, और आपको पता है नीचे की तरफ में बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं. सो इट मे हैपन दैट दीज मेरिस्टेम सेल्स दे मे गेट डैमेज ड्यू टू सॉइल पार्टिकल्स और द स्टोन्स और पेबल्स, राइट? इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैप लगाया जाता है. अब क्या होता है गाइस, मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड होके नए सेल्स के लेयर्स ऊपर की तरफ पुश करता है, धक्का मारता है, and the tip is going down, tip is going down and the new cells are pushed. So the new cells which are pushed at the top, these cells will elongate. Now they will enlarge, and when they enlarge they will grow in a size. ये देखो बड़े हो रही है, सेम वही न्यू सेल्स यहाँ पर बड़े हो रहे हैं. सो जितने वो बड़े होंगे ना, रूट का लेंथ उतना ही ज्यादा बड़ा होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग everyone? Yes, miss. Yeah, no, I'm asking to everyone. Yes, Yes, miss. ओके ओके, Yes, अभी ma'am. ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान दो. मैंने क्या कहा, क्या कहा मैंने? कौन सा रीजन बताया मैंने आपको? रीजन ऑफ इलोंगेशन. इलोंगेट हो गया, सेल्स को जितने इलोंगेट होने थे, ग्रो होने थे, उतने वो अच्छे खासे साइज में बड़े हो गए. अब ये जो सेल्स यहाँ पे बड़े हो गए ना, इलोंगेट, अब वो ऊपर धक्का मारेंगे, मतलब ये सेल्स ऊपर की तरफ पुश होंगे, एंड नाउ दे विल टर्न इनटू मैच्योर सेल्स. Now they will turn into mature cells. So the next is region of maturation, यानी कि जो सेल्स elongate हुए, elongated cells मतलब जो सेल्स elongate हुए, elongate यहाँ पे elongation region में जो सेल्स बड़े हुए, now they will turn into mature cells, यानी कि they will stop growing. First of all they will stop dividing, division का तो पावर उनका चला गया है. They will also stop growing. No growth, no division, only they will carry out function. यानी कि mature cells है ये region जो है maturation, it contains mature cells. The elongated cells are turning into mature cells and they convert themselves, I mean they will form a permanent tissues. They will develop permanent tissues which are strong tissues. Strong tissues. यानी कि ये region जो है completely strong हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू से बनेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज ब्रॉडर. आप देखो ध्यान से, वो थोड़े से ब्रॉड है रीजन, एंड जैसे हम नीचे जाते रूट जो है वो धीरे धीरे नैरो होते जाता है. आप देख रहे हो? हेलो, Yes, ma'am. Yes, miss. श्योर? miss. ओके. हाँ, अभी मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, सुन रहे हो? Yes, miss. Okay, the question is very simple. Out of this 4 region, अच्छा
पहले तो फर्स्ट रीजन बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? रूट कैप. Root cap. Yes, root cap are made up of simple parenchyma cells के बहुत सारे layers. Okay, it is made up of multi-layer of parenchyma cells, which is protecting the tip of the root. That is, the tip is having meristematic cells, dividing cells, which is having prominent nucleus, thin wall, and lightly cytoplasm, and they are responsible for dividing rapidly so that they can increase the length of the root. How? The new cells which are produced by meristem cells are pushed above. They are pushed to the upper side and now they will elongate. यानी कि जो नए cells बने हैं वो elongate होंगे, enlarge होंगे in size and will increase the length of the root. अब जैसे ही उनका elongation हो गया, growth हो गया, मतलब basically यहाँ पर ना growth हो रहा है, अच्छा खासा growth हो रहा है. अब जैसे ही growth हो गया, ग्रोथ हो जाने के बाद वो सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे? परमानेंट सेल्स. दे विल लूज द एबिलिटी ऑफ डिविजन, दे विल लूज द एबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड दे विल टर्न इनटू मैच्योर सेल्स वेयर दे विल बिकम परमानेंट टिश्यूज. दैट क्लियर हुआ? तो अब समझ में आया कि ऊपर का रीजन ब्रॉडर क्यों और नीचे का रीजन नैरो क्यों है. अब समझा? ऊपर का रीजन ब्रॉडर इसलिए है क्योंकि वहां पे ग्रो किए हुए सेल्स है, यानी कि जिनका ग्रोथ हो चुका है, एनलार्ज हो चुके हैं और जो मैच्योर हो गए, फिक्स हो गए उनके साइज और शेप में, वो सेल्स यहां पर है. और इसलिए रूट का अपर रीजन इज ब्रॉडर एंड द लोअर रीजन इज नैरो, क्योंकि नीचे का रीजन ग्रो डिवाइड होते जा रहा है, इसलिए वो नैरो है. एंड वो डिवाइडिंग सेल्स ऊपर की तरफ में ऐड होके वो ब्रॉडर हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? यस मिस. है ना? तो अब मेरा क्वेश्चन, Yes, miss. हाँ अब मेरा क्वेश्चन है, आपने रूट कैप रीजन देखा, आपने रीजन ऑफ सेल डिवीजन देखा, इलोंगेटिंग रीजन देखा और मैच्योरिटिंग रीजन देखा. इन चारों रीजन में से कौन सा रीजन एब्जॉर्प्शन करेगा? Region of maturation. Okay, everyone is saying, maximum people are saying region of maturation. Anyone is having any other answer for it? Anyone think that it is another region जो absorption कर रहा है apart from region of maturation? Because maximum लोगों ने region of maturation बोला है. Region of elongation. अच्छा, you are saying region of elongation. अच्छा ठीक है. Here is saying region of elongation. Here is also saying elongation. Guys, listen. ये चारों के चारों रीजन एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं. बस चलो मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्यों. रूट कैप कैसे एब्जॉर्ब करेगा? कहां पे प्रेजेंट है? देखो टिप पे प्रेजेंट है और उसका काम क्या है? सॉइल को डिग करते जाना ताकि रूट को जगह मिले आगे ग्रो होने के लिए. ये तो एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाएगा. डिवीजन, यू आर टॉकिंग अबाउट रीजन ऑफ डिवीजन. इनका तो एक ही काम है, डिवाइड करना. एंड व्हेन द सेल्स आर डिवाइडिंग दे विल नॉट कैरी आउट एनी अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. इनका न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा है, तो अगर ये एब्जॉर्प्शन कर भी लेते हैं, मान लो अगर ये एब्जॉर्प्शन कर भी लेते हैं, एब्जॉर्ब करके कहां डालेंगे पानी को? दे डोंट हैव स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, राइट? तो चौकड़ी यहां पे, ओके मैं चौकड़ी मारती हूं, यहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहां पे भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. अब 2-3 लोगों ने कहा रीजन ऑफ इलोंगेशन. ध्यान से देखो, इलोंगेशन में सेल क्या कर रहा है? ऑल द सेल्स आर डूइंग व्हाट? ग्रोथ. अभी बच्चे क्या समझते हैं कि जहां पे ग्रोथ कर रहे हैं वहां पे उनको एब्जॉर्ब करना रहता है ना, वाटर और मिनरल्स ग्रोथ करने के लिए. नहीं, दे आर इलोंगेटिंग इन साइज एंड शेप. दैट डजंट मीन कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके इलोंगेट हो रहे हैं. दे आर इलोंगेटिंग इन साइज एंड शेप, यानी कि वो ग्रो हो रहे हैं, वो इलोंगेट हो रहे हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेवलप हो रहा है, सेल ऑर्गेनल्स डेवलप हो रहे हैं एंड वो दूसरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करके ग्रोथ कर रहे हैं. ओके, सो इलोंगेशन भी एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा. मैच्योरेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज दीज आर मैच्योर सेल्स विद अ थिक सेल वॉल. द सेल वॉल इज सो थिक कि एब्जॉर्प्शन करने में तकलीफ हो जाएगी. एंड दीज आर परमानेंट इश्यूज. ये कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सारे के सारे रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जितने भी टिश्यूज है दे ऑल आर थिक सेल वॉल मेड टिश्यूज. तो फिर अब रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहां पर है बताती हूं. ये देखिए, देयर इज अनदर ब्रैकेट व्हिच इज अपीयरिंग. मैम एक मिनट. हाँ, परी कैमरा ऑन करो. अभी कैमरा मैम बंद हुआ तो कैमरा ऑन आपको है लेक्चर. मेरा.
नहीं, अभी जस्ट आपने ऑन किया, मैं कंटिन्यूस नोटिस कर रही हूँ। अभी कैमरा ऑफ हुआ तो मैं लेक्चर से निकाल दूंगी। ये लास्ट वार्निंग है आपको, और सबको मैं बोल रही हूँ, जिसका भी कैमरा ऑफ हुआ वो लेक्चर से निकाल दूंगी मैं उसको। लास्ट वार्निंग है सबको। ओके गाइस, ना कैन यू सी, मैंने यहाँ पर एक एडिशनल ब्रैकेट बना के यहाँ पे रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखा है। कैन यू सी दैट? अब मैं सारा रिटन मैटर पहले देख लो। रिटन मैटर ले लिया आप लोगों ने, एक एक रीजन्स का डिस्क्रिप्शन ले लिया सो दैट आई कैन रब इट। यस मैम। सबने ले Yes, लिया? miss. ओके ओके, Yes. अब मैं रब कर रही हूँ। नाउ सी दिस, वाओ, रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। ध्यान से देखो, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योर सेल्स आर प्रोड्यूसिंग, मैच्योर सेल्स मतलब जहां पे मैच्योर सेल्स का रीजन है, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन, राइट? उसी मैच्योर रीजन में से, उसी मैच्योर रीजन का जो आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ द रूट, outer epidermis, okay, extend outside, extend outside to form hairs. They extend outside to form hairs. ध्यान से देखो, ये जो मैंने region of absorption लिखा है, these are carried out by these fine hair like structures which are called root hairs. So what are root hairs? फिर से एक और बार रिपीट कर रही हूं। What are root hairs? Root hairs are the some epidermal cells of mature region, okay, forms very fine and delicate, very fine and delicate thread like structure, and these thread like structures are called root hairs. Understood guys? ध्यान से देखो, so basically suppose if I draw yes, see this, I've drawn it, दिख रहा है आपको? ये देखो, I've shown the extension, see this, right? ये अंदर का cell membrane and cytoplasm, cell membrane and cytoplasm, and here in the root hair you can see even the cell membrane is continuing to form the root hair, मतलब cell membrane भी root hair के अंदर continue हो रहा है. See, this is how the extension takes place, guys. ऐसा होता है extension. आप समझ रहे हो? Epidermal, this is the epidermal cell. तो epidermal cell जो है, यानी कि outer covering of the root, outer covering of the root, the outer covering of the root, yes, the outer covering of the root which is called epidermis, that will extend out, यानी कि उसका cell wall और cell membrane extend होगा, it will protrude out in a fine thread like structure which is called root hair. ओके अब जाहिर सी बात है एक्सटेंड हो रहा है तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो थोड़ा थिन हो जाएगा ना, यस और नो? एक्सटेंशन हो रहा है तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो थिन हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई रूट हेयर, सिंस दे हैव थिन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, it can rapidly carry out the absorption of water and minerals. Is that clear? याद करो मैंने क्या कहा था, region of maturation में cells are very thick with a thick cell wall. I am still telling the same thing. Region of maturation में cells are literally having thick cell wall. But what happens? The outer covering of the root, which is epidermis, this epidermal cells, they extend outside. I mean the cell wall and the cell membrane of epidermis, it extend outside to form a thread-like structure. तो अब अगर extension होगा, अगर आप किसी भी चीज को stretch करोगे तो वो पतला होगा ना, वो मोटा तो नहीं रहेगा, right? Balloon,
बलून को जब आप ब्लो नहीं करते हो तभी आपको मोटा फील होता है, थिक फील होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको ब्लो करना शुरू कर देते हो वो एक्सपैंड होता है, और एक्सपेंशन की वजह से उसका वॉल जो है वो पतला हो जाता है. एम आई राइट? यस और नो? वही लॉजिक यहाँ पे भी है. एपिडर्मल सेल्स जैसे बाहर की तरफ एक्सटेंड होते हैं, द वॉल बिकम्स थिन, एंड दैट्स व्हाई द रूट हेयर्स आर एबल टू कैरी आउट एब्जॉर्प्शन. यू गॉट दैट? Yes, miss. Yes, ma'am. अब आप Yes, ध्यान miss. से Ma'am? देखो. हाँ हाँ. Ma'am, I have a doubt. Yes, Actually, Rita. it's like I want to ask that the root hair is what leads to the formation of secondary and tertiary roots. No, 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 no. Root hairs does. अच्छा हुआ रीदा आपने एक क्वेश्चन पूछा. Root hair does not lead to the formation of secondary and tertiary roots. नहीं, नहीं, नहीं. अभी मैं आपको ये भी बता, आई वॉज जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली. मैं बोली मैं इनको रूट हेयर पढ़ा दूं और फिर बाद में मैं इनको सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स के बारे में बताती हूँ. गाइस पहले रूट हेयर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं रिदा के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन ही रूट हेयर होता है. ना दिस रूट हेयर आइडियली ना दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. बट चलो मैं बता रही हूँ, देयर आर thousands of root hairs which are produced near the maturation zone. Thousands of root hairs, बहुत सारे रूट हेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. आर यू गेटिंग इट? फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल. सो सिंस देयर इज, देखो ये छोटे छोटे हेयर्स जैसे छोटे छोटे पतले पतले बहुत ही फाइन थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो आउटर रीजन ऑफ द सेल, सॉरी आउटर रीजन ऑफ द रूट इज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड. Okay, the epidermal cells, the covering of the root is protruding outside to form very thin thread-like structures, many in number. And छोटे होते हैं, ज्यादा लेंथ में बड़े नहीं होते रिदा, ये ज्यादा लेंथ में बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं. Okay, so their length is also very small, and they are mainly meant for carrying out the absorption. अब आप सोचो, everyone, you think if these root hairs which are very fine and small in size, if they are produced more in number, तो उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ना. लॉजिक है, अगर कम प्रोड्यूस होंगे तो कम एब्जॉर्प्शन होगा, अगर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. नाउ द लाइफ स्पैन ऑफ दिस रूट हेयर्स आर फॉर 8 to 10 days. यानी कि 8 to 10 days तक ये एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे 24/7, and after that they will fall off. Guys, after that they will fall off. मतलब क्या? अपने बाल, अपने सर के बाल के जैसे, अपने सर के बाल के जैसे. What is our hair doing on the skull? Our hairs are also protecting the skull, yeah, from the dust and sunlight and all. अब जब ये कमजोर हो जाते हैं, ये जब ओल्ड हो जाते हैं, they fall off. So falling off is a natural process of the living organism. Falling off is a natural process. हम डेड स्किन, हमारे बॉडी में से डेड स्किन एवरीडे फॉल ऑफ होता है. हेयर्स, ओल्ड हेयर्स या वीक हेयर्स एवरीडे फॉल ऑफ होता है. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. यू कांट स्टॉप दिस नेचुरल प्रोसेस. सेम वे यहाँ पे, सिंस रूट का सबसे एक्टिवली पार्ट है रूट है. नाउ व्हाई आई एम सेइंग एक्टिवली पार्ट? बिकॉज ये कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है रूट हेयर्स बहुत जल्दी वीक हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, सो दे विल फॉल ऑफ. एंड व्हेन दे फॉल्स ऑफ, epidermal cells, they have nucleus. They have a nucleus. So when they fall off from the same place, and another new root hair has been generated. Are you getting it? यानी कि epidermal cells replace करेगा old root hairs को नए root hairs के साथ. आप समझ रहे हो बच्चा लोग? Hello? Yes, Yes, miss. miss. Yes, Sure. yes. Yes, miss. All right, great, very good, very good. Okay, अभी मैं इसका आंसर देती हूँ, रिदा का. रिदा ने मुझसे पूछा था कि, क्या पूछा था रिदा? आई फॉरगॉट. हाँ, रिदा ने मुझसे पूछा था कि क्या ये रूट हेयर्स सेकेंडरी और टर्शियरी बनाते? नहीं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन ब्रांचेस नहीं बनाते. ब्रांचेस जो है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन से आते हैं. या रिमेंबर दैट, इलोंगेटिंग रीजन से ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं. इलोंगेटिंग, यहां से या अंदर से ऐसे ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं.
इलोंगेटिंग रीजन, समझ रहे हो? डिवाइडिंग रीजन से भी नहीं, और मैच्योर रीजन तो कैसे देगा रिदा? मैच्योर रीजन तो ब्रांचिंग कैसे देगा? मैच्योर रीजन इज वेरी थिक, इट्स अ परमानेंट सेल का रीजन। वो कुछ नहीं करेंगे, ना वो ग्रोथ करेंगे ना वो डिवीजन करेंगे, दे विल जस्ट कैरी आउट फंक्शन, एंड वो है दो फंक्शन, एक है फिक्सेशन और दूसरा जो रूट है एब्जॉर्ब कर रहे वाटर, उसको ऊपर पहुंचाना है प्लांट में, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, miss. तो ब्रांचेस Yes, कहां miss. से अराइज हो रहे हैं? ब्रांचेस आर अराइजिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन। रिदा याद रखना, अभी जो ब्रांच रिदा यहां से अराइज हो रहा है, चलो ये सेकेंडरी ब्रांच हो गया रेड वाला, तो अभी ये जब टर्शियरी ब्रांच प्रोड्यूस करेगा तो सेकेंडरी ब्रांच इज आल्सो शोइंग द सेम रीजन। गाइस आर यू लिसनिंग? सेकेंडरी ब्रांच भी चार रीजन दिखाएगा, रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिविजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो उसके रीजन ऑफ इलोंगेशन में से टर्शियरी ब्रांच निकलेगा। आर यू गेटिंग इट? फिर टर्शियरी ब्रांच के रीजन ऑफ इलोंगेशन में से क्वार्टनरी ब्रांच निकलेगा। आप समझ रहे हो? जितने भी ब्रांचेस Yes. होते हैं वो सारे ब्रांचेस का रीजन फिक्स है बच्चा लोग। जितने भी ब्रांचेस होते हैं रूट्स के, वो सारे रूट्स के रीजन्स फिक्स्ड है। देयर आर 4 रीजन्स एंड दीस 4 रीजन्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि रिदा ये जो सेकेंडरी रूट्स है वो सेकेंडरी रूट के मैच्योरिटी यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको छोटे छोटे पतले पतले ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। टर्शी रूट्स के भी मैच्योर जोन में आपको ऐसे पतले पतले रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। क्वार्टनरी ब्रांचेस में भी आपको ऐसे रूट हेयर्स, यानी कि रूट हेयर्स भी सारे ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं नियर द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यानी कि सभी का स्ट्रक्चर एंड रीजन सेम ही है। दैट्स व्हाई रूट्स आर एंडोजीनस इन नेचर, वेयर शूट में वैसा नहीं है। हर एक पार्ट अलग है, हर एक का टिश्यू सिस्टम अलग है एंड हर एक पार्ट का फंक्शनिंग अलग है। लीफ is carrying out a different function, flower is carrying out a different function, buds are carrying out a different function, stem is carrying out a different function. So that is why it is exogenous and this is endogenous. Everyone got this point? Yes, miss. Yes, Yes. मैं ये ब्रांचिंग सिस्टम रब कर दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे बिना मतलब। लिख लो, branches are arising from the root region of elongation। ठीक है? चलो हो गया टिपिकल रूट स्ट्रक्चर। Yes, miss. बढ़िया। चलो आगे बढ़ू मैं। गाइस, श्रेया, दिव्या, हीर, आरुषि, आरुषा। yes, miss. ओके, Yes, ma'am. देयर इज वन मोर श्रेया ओवर हियर, वो बहुत शांत बैठी है हमारी। दूसरी वाली श्रेया कौन है बच्चा? ओके ओके, पवनी बेटा क्लियर? उजाला, हर्षित, Yes, ma'am. स्वरा, यहाँ तक Yes, सबको ma'am. क्लियर? ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तनिष्का, सिद्धि, परी, चलो गुड। Moving on further. Functions of root. क्या लगता है आपको मैं क्या बोलने वाली हूँ? फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली फिक्सेशन एंड एंकरेज। दिस इज अ मेन फंक्शन, मैंने इसलिए पहले ही बोला था ये उसका मेन फंक्शन है। जब तक वो प्लांट को फिक्स ही नहीं करेगा सॉइल के अंदर, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन इन द प्लांट। क्या एब्जॉर्प्शन होगा फिर? until and unless the plant is not fixed inside the soil, what it will carry out the absorption? पहले fixation बहुत important है, right? And then after that, the another major function is absorption of water and minerals from the soil. When it is absorbing water and minerals from the soil, it is conducted to the stem by xylem or through
जाइलम, यानी कि कंडक्शन एब्जॉर्ब करने के बाद इमीडिएटली उसको कंडक्ट कहां पे करते हैं? अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, एंड दैट टू थ्रू जाइलम. इज दैट क्लियर? Okay. Now, now there's something new that is coming up for you all. Okay, I'm very excited. Everyone, please rejoin. Huh? Rejoin, rejoin, rejoin. Now, मैंने क्या कहा था? Flowering plants are the most advanced group of plants. Yes or no? And they have a very beautiful way of adapting the nature, adapting the conditions outside. You know, it's so amazing that even the roots are getting modified. Trust me. मतलब पहले मैं भी जब कॉलेज डेज में पढ़ती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि रूट्स क्या होता है, मतलब रूट्स का तो एक ही तो फंक्शन होता है यार, फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन. अब वो क्यों मॉडिफाई हो जाएंगे? बट ट्रस्ट मी, इवन दे मॉडिफाई, दे आल्सो चेंज देयर स्ट्रक्चर. फर्स्ट, some roots they become fleshy and